Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We welcome you to this very last broadcast from 1 Peter. पहला पत्रस पर आधारित इस अंतिम प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। We have been studying this magnificent epistle for the last several messages. हम इस शानदार पत्री का पिछले कई संदेशों से अध्ययन करते आ रहे हैं And today we're going to look at the very last section of the epistle. और आज हम इस पत्री के बिल्कुल अंतिम भाग को देखने जा रहे हैं। And if you have your Bibles, you can turn to 1 Peter chapter 5 verses 8 to 14. और यदि आपके पास बाइबल है तो आप इसे पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 से 14 पदों पर खोलिए। And as you get your Bibles ready, और जब तक आप अपनी बाइबल खोल रहे हैं, I want to tell you some things that I have learned from life. मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने जीवन से सीखी हैं। I have met people who refuse to be warned of the warning signs. मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो चेतावनी के संकेत पाकर भी सावधान नहीं होते। They would have warnings that their business is in trouble, but they refuse to take notice. उन्हें चेतावनियां मिलती हैं कि उनका व्यवसाय समस्या में पड़ने वाला है, परंतु वो ध्यान नहीं देना चाहते। They get warnings that their marriage is in trouble, but they refuse to take notice. उन्हें चेतावनियां मिलती हैं कि उनका वैवाहिक संबंध खतरे में है, परंतु वो सतर्क नहीं होना चाहते। Now, I want to talk to you about this refusing to take notes of warnings. अब मैं आपसे इस चेतावनी पाकर भी सतर्क होने से इनकार करने के बारे में बात करना चाहता हूं। Because Satan forever is luring believers into a false sense of security. क्योंकि शैतान हमेशा से ही विश्वासियों को सुरक्षा के झूठे एहसास का प्रलोभन देता आ रहा है। Satan is forever trying to convince believers that all is well with their half-hearted commitment to Christ. शैतान हमेशा से ही विश्वासियों को ये यकीन दिलाने का प्रयत्न करता आ रहा है कि मसीह के प्रति आधे समर्पण से ही सब कुछ ठीक ठाक है। In the meantime, there are trouble around the corner. और इसी दौरान आगे समस्याएं पैदा हो जाती हैं। Peter concludes his first epistle with a dire warning to Christians in Asia Minor. पत्रस अपनी पहली पत्री अल्पांश एशिया के मसीहियों को गंभीर चेतावनी देते हुए समाप्त करता है। Look at 1 Peter chapter 5 verse 8. पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद को देखिए। Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. गंभीर रहो और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Being sober is different from being vigilant. गंभीर होना सतर्क रहने से अलग है। You can be sober but not vigilant. आप गंभीर रह सकते हैं परंतु सतर्क नहीं। But you cannot be vigilant without being sober. परंतु आप गंभीर हुए बिना सतर्क नहीं रह सकते। And that is why Peter puts being sober first. और इसी कारण पत्रस गंभीर रहना पहले लाता है। Driving under the influence of alcohol is the number one cause of traffic death throughout the Western world. शराब के नशे में गाड़ी चलाना पूरे पश्चिमी जगत में सड़क हादसों में मृत्यु का नंबर 1 कारण है। Why? क्यों? Because a drunk driver has impaired vision. क्योंकि एक शराबी चालक स्पष्ट नहीं देख सकता। A drunk driver has impaired reactive mechanisms. एक शराबी चालक की चालक कार्यविधि उल्टी हो जाती है। A drunk driver has impaired control over his limbs. एक शराबी व्यक्ति अपने हाथ पांव पर नियंत्रण नहीं रख पाता। But here's the tragedy. परंतु दुखद बात यह है, Everybody else around the drunk can see the effect of alcohol except the drunk himself. कि उस शराबी व्यक्ति के आसपास के सभी लोग शराब के प्रभाव को देख सकते हैं, लेकिन खुद वो शराबी नहीं देख सकता। Why? क्यों? Because drunkenness creates the ultimate self-deception. क्योंकि ये पियक्कड़पन अनोखा आत्मछल पैदा करता है। The Christian who allows Satan to deceive him वो मसीही जो शैतान को उसे छलने का अवसर देता है, sooner or later will begin to deceive themselves. कभी न कभी अपने आप को छलना शुरू कर देते हैं। And that is why Peter is pleading for the Christians to be serious-minded about the devil. और इसी कारण पत्रस मसीहियों से निवेदन कर रहा है कि वो शैतान के बारे में गंभीर चित्त रहें। Do you know what Satan's modern day deception is? क्या आप जानते हैं कि शैतान का आधुनिक छल क्या है? It is keeping us so busy
that we become numb with tiredness. ये है हमें इतना अधिक व्यस्त कर देना कि हम थकावट से जड़ हो जाएं। It is keeping us so strung up for time that we have no time to be sober and vigilant. ये है हमें समय के साथ इतना उलझाए रखना कि हमारे पास गंभीर और सतर्क रहने का समय ही ना हो। It is keeping us overcommitted that we are running haggard. ये है कि हमें हमारे कार्यों के प्रति हद से अधिक समर्पित कर देना कि हम थके हुए भी भागते रहें। And once he has you running completely exhausted, और एक बार उसने आपको थके हुए भी दौड़ते पा लिया, once he has you overcommitted, एक बार उसने आपको हद से अधिक समर्पित पा लिया, then he will attack you. फिर वो आप पर प्रहार करेगा। And before you know it, you are spiritually blown off the map. और इससे पहले कि आपको पता चले, आत्मिक रूप से आपका नाम पता नक्शे पर से उड़ चुका होता है। Peter is telling believers to be serious-minded about the devil's intentions. पतरस विश्वासियों से कह रहा है कि वो शैतान के बारे में गंभीर चित रहे। His intentions are always known, and that is to entrap you. उसके इरादे हमेशा स्पष्ट हैं और वो है आपको फंसाना। I have researched the reasons for Peter's use of the image of a lion to describe the devil. मैंने पतरस के द्वारा शैतान का वर्णन एक शेर के रूप में करने के कारणों का अध्ययन किया है। Some early Christian traditions said that Peter wrote this particular epistle from the city of Rome. कुछ आरंभिक मसीही परंपराएं कहती हैं कि पतरस ने ये पत्री रोम शहर से लिखी थी। There he may have seen how some Christians were devoured by hungry lions in the Roman stadiums. वहां शायद उसने रोम के खेल के मैदानों में शेरों के द्वारा कुछ मसीहियों को फाड़ खाए जाते हुए देखा होगा। Or he probably thought back to the words of Jesus when he said to him, Peter, Peter, Satan has sought permission to sift you as wheat, but I'm praying for you. या शायद उसने यीशु के उन शब्दों के बारे में सोचा होगा जहां यीशु ने उससे कहा था, पतरस पतरस, शैतान ने चाहा है कि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। Peter probably thought about how Satan was trying to devour him on that last day before Good Friday. पतरस ने शायद उस घटना के बारे में सोचा होगा जब गुड फ्राइडे के एक दिन पहले कैसे शैतान उसे फाड़ खाने का प्रयत्न कर रहा था। When he denied the Lord Jesus 3 times. जब उसने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया। I also learned something else about lions and their roaring. मैंने भी शेरों और उनकी दहाड़ के विषय में कुछ और अध्ययन किया है। Lions apparently roar on 3 different occasions. शेर खासकर 3 अलग अलग मौकों पर दहाड़ते हैं। A lion roars when a competitor strays into his territory and tries to hunt on his turf. एक तो शेर तब गरजता है जब कोई दूसरा शेर उसके क्षेत्र में घुसकर शिकार करने का प्रयत्न करता है। At that point, a lion's roar is to tell the intruder to butt out. That's my territory. इस स्थिति में शेर की दहाड़ का मतलब घुसपैठिए को यह बताना होता है कि यहां से निकल जाओ, ये मेरा इलाका है। The second occasion in which the lion known to roar is when he is caught in a storm. शेर के गरजने का दूसरा मौका यह कहा जाता है कि जब वो आंधी में फंस जाए। Lions apparently detest thunder and lightning. शेर खास तौर से आंधी और बिजली की चमक से घृणा करते हैं। The third occasion in which the lion known to roar vigorously is after catching his prey. तीसरा अवसर जिसमें कहते हैं कि शेर पूरी शक्ति से दहाड़ता है, वो है अपना शिकार पकड़ने के बाद। This is most likely the roar that Peter has in mind here. और बहुत संभवतः यहां पर पतरस के मन में इसी दहाड़ का विचार था। When a lion catches his prey and wrestles it to the ground, he roars a roar of triumph. जब शेर अपना शिकार पकड़ने के बाद उसे जमीन पर घसीटता है तो वो विजय की दहाड़ दहाड़ता है। This is the lion's way of saying, I have got you under my control. यह है शेर का तरीका ये कहने का कि मैंने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। This is the lion's way of intimidating the prey into non-resistance. यह है शेर का तरीका अपने शिकार को भयभीत कर विरोध न करने की स्थिति में ले आना। Lions are very cunning creatures. शेर बहुत चतुर जीव होते हैं। They do not roar before they catch their prey. वो अपने शिकार को पकड़ने से पहले नहीं दहाड़ते। Why? क्यों? It would scare the prey into running away. इससे शिकार डर के भाग जाएगा।
So he creeps quietly so that no one is the wiser. तो वो इतनी खामोशी से आगे सरकता है कि इससे अधिक कोई समझदार हो ही नहीं सकता। He tiptoes so that he may not be detected. वो बहुत छिपकर आगे बढ़ता है ताकि उसका पता न चल सके। He quietly prowls until the prey is totally unsuspecting. वो खामोशी से पता लगाते हुए आगे बढ़ता है कि शिकार को बिल्कुल शक न हो। And once the prey lies down and goes to sleep, और एक बार जब शिकार लेट कर सो गया, he moves in with the speed of lightning. तो वो बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ता है। At that point he roars as if to say, I have got you and you cannot get away from me. इस मौके पर वो ऐसे दहाड़ता है जैसे कह रहा हो, मैंने तुझे पकड़ लिया है और अब तुम मुझसे नहीं भाग सकता। The devil does the same thing. शैतान भी ऐसा ही करता है। Satan gets you involved in all kind of extraneous activities, शैतान आपको हर प्रकार की बेमतलब की गतिविधियों में उलझाए रखता है। thinking that you are doing good work. आप सोचते रहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। He gets you busy with life's problem. वो आपको जीवन की समस्याओं में उलझाए रखता है। He gets you busy with life's pleasures. वो आपको जीवन की खुशियों में उलझाए रखता है। He gets you busy with life's activities. वो आपको जीवन की गतिविधियों में उलझाए रखता है। He gets you busy with lust and greed and more. वो आपको लालसा और लालच और बहुत सारी बातों में उलझाए रखता है। When you don't have time for prayer, जब आपके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं रहता and when you don't have time for the Word of God, और जब आपके पास परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं रहता and when you don't have time for fellowship and be accountable to others, और जब आपके पास संगति और दूसरों के प्रति जिम्मेवार होने का समय नहीं रहता, then you do this day after day after day. तो फिर ये आप दिन ब दिन लगातार करने लगते हैं। What is Satan doing? शैतान क्या कर रहा है? He is waiting. वो प्रतीक्षा कर रहा है। He's prowling. वो चुपचाप ढूंढ रहा है। He's tippy-toeing. वो खामोशी से आगे बढ़ रहा है। And once you become spiritually lethargic, और एक बार जब आप आत्मिक रूप से सुस्त हो गए, he gets you under him and he roars to his heart's content. तो वो आपको अपने अधीन कर लेता है और अपने हृदय की पूरी संतुष्टि होने तक दहाड़ता है। And that is why Peter left his most important warning to the end. और इसी कारण पतरस ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी को आखिर में रखा है। Be sober and be vigilant. गंभीर और सतर्क रहो। Don't be flippant about your enemy. अपने शत्रु के बारे में चंचल न बनो। Don't be ignorant about his intentions toward you. आपके प्रति उसके इरादों के बारे में अनभिज्ञ न बनो। Don't think for a moment that he is not setting a trap for you. एक क्षण के लिए भी ऐसा न सोचो कि वो आपके लिए जाल नहीं बिछा रहा है। In the Old Testament, David was a man after God's own heart. पुराने नियम में दाऊद परमेश्वर के दिल का आदमी था। And yet, in a period of a few years, Satan got David to relax. और तो भी थोड़े से वर्षों के समय में ही शैतान ने दाऊद को थोड़ा सा सुस्त कर दिया And enjoy all of his success and his resources. कि वो अपनी कामयाबी और अपने सब प्रावधानों का आनंद उठाए। And David could not hear the lions creeping into his life. और दाऊद शेरों को अपने जीवन में सरकते हुए न देख पाया। David ceased to be spiritually vigilant and sober. दाऊद ने आत्मिक रूप से गंभीर और सतर्क रहना छोड़ दिया And he began to enjoy the acceptance by society. और उसने समाज के द्वारा उसकी स्वीकारता का आनंद उठाना प्रारंभ कर दिया। For a poor boy growing up in a poor home, एक गरीब लड़का जो गरीब घर में पला बढ़ा, उसके लिए setting up and enjoying his throne is natural but not supernatural. सिंहासन स्थापित करना और उसका आनंद उठाना स्वाभाविक था, परंतु अलौकिक नहीं। David was not struggling with God in prayer anymore. दाऊद अब प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। David stopped walking across the street and spending time in the temple of God. दाऊद ने सड़क से पैदल चलकर परमेश्वर के भवन में जाकर समय बिताना बंद कर दिया था। And in time, David fell into the snare of the enemy. और कुछ ही समय में दाऊद शैतान के मोह जाल में फंस गया And began his downward spiral, which put a huge blotch on his pure heart. और उसका चक्र उल्टा घूमने लगा, जिससे उसके साफ हृदय पर बहुत बड़ा दाग लग गया। Satan has a clear aim. शैतान का निशाना स्पष्ट है। Satan has a well-defined goal. शैतान का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। Tempt believers to sin and make them afraid of standing before God. विश्वासियों को पाप की परीक्षा में डालना और उनमें परमेश्वर के सामने जाने से डर पैदा करना।
Satan's clear aim is to destroy the impact of the gospel in the world. शैतान का स्पष्ट लक्ष्य है संसार में सुसमाचार के प्रभाव को समाप्त करना। Satan's precise goal is keep unbelievers from becoming believers. शैतान का निश्चित लक्ष्य है गैर विश्वासियों को विश्वासी बनने से रोके रखना। Satan's aim is to deceive people into believing that they can be good without God. शैतान का निशाना है लोगों को ये विश्वास दिलाकर छलना कि वो परमेश्वर के बिना ही अच्छे बन सकते हैं। Satan's clear aim is to distort the gospel. शैतान का स्पष्ट निशाना है सुसमाचार को बिगाड़ना। Why? क्यों? So that it does not stand in clear contrast to false belief systems. ताकि ये झूठी विश्वास प्रणाली के विरुद्ध स्पष्टता से स्थापित न हो। Satan's greatest activities take place when believers are alert and sober and having victory over sin. शैतान की सबसे जोरदार गतिविधियां तब प्रारंभ होती है जब विश्वासी गंभीर, सतर्क और पाप पर विजयी हो रहे होते हैं। My listening friends, please listen to me very carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। I want you to look at 1 Peter chapter 5 verse 10. मैं चाहता हूं कि आप पहला पत्रस 5 अध्याय के 10 पद पर गौर करें। Listen to what Peter said. सुनिए पत्रस क्या कहता है। Our God is a God of all grace and He will come to our aid the moment we call upon Him. हमारा परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है, हमारे उसे पुकारते ही हमारी सहायता करने के लिए आता है। You must never try to be a spiritual commander and attempt to take the devil on by yourself. आपको कभी भी खुद ही आत्मिक लड़ाकू बनकर शैतान को धर दबोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। That would be one of the greatest mistakes that you can make. ये आपके द्वारा की जा सकती सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी। The God of all grace is ready and willing to defend you. सारे अनुग्रह का परमेश्वर आपको बचाने के लिए तैयार और इच्छुक है। The God of all grace is ready and willing to protect you. सारे अनुग्रह का परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने को तैयार और इच्छुक है। The God of all grace is ready and willing to fight on your behalf. सारे अनुग्रह का परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने को तैयार और इच्छुक है। All you need to do is ask. आपको केवल उसे कहने की आवश्यकता है। That's what being sober and vigilant is all about. यही है गंभीर और सतर्क होना, Staying close to God. परमेश्वर के करीब रहना। The God of all grace is ready and willing to strengthen you. सारे अनुग्रह का परमेश्वर आपको सामर्थी बनाने का इच्छुक है। In verse 13 of chapter 5, Peter said, 5 अध्याय के 13 पद में पत्रस ने कहा, She who is in Babylon. वो जो बेबीलोन में है। Who is he talking about? वो किसके बारे में बात कर रहा है? The she is the church in Rome. ये वो रोम की कलीसिया है। The bride of Christ in the city of Rome. रोम शहर में मसीह की दुल्हन। Babylon refers to Rome because it was a city that had become like Babylon of old. बेबीलोन रोम को कहा गया है क्योंकि ये शहर पुराने बेबीलोन जैसा बन गया था। Even pagan Romans nicknamed Rome Babylon. बल्कि अन्य जाति रोमियों ने इसका छोटा नाम रोम बेबीलोन रख दिया था। Why? क्यों? Because of the level of decadence and self-indulgence that it revealed. इसकी गिरावट और आत्मलिप्तता के कारण जो इससे प्रकट होती है। The same thing could be said of many faithful churches in many cities of the world today. यही बात आज संसार के बहुत सारे शहरों में स्थापित बहुत सारी विश्वास योग्य कलीसियाओं के लिए भी कही जा सकती है। The spirit of Babylon, बेबीलोन का आत्मा, which is the spirit of decadence and self-indulgence, जो कि गिरावट और आत्मलिप्तता का आत्मा है, has invaded many cities in the world. आज संसार के बहुत सारे शहरों में प्रवेश कर चुका है। And many believers live in a modern day Babylon. और बहुत सारे विश्वासी आधुनिक बेबीलोन में रह रहे हैं। There was once a famous animal trainer. एक बार एक व्यक्ति था जो जानवरों को प्रशिक्षण देता था। He trained wild beasts to respond to his commands. वो जंगली जानवरों को उसके आदेश पर चलने का प्रशिक्षण देता था। One particular act that always brought the crowd to its feet involved a 35-foot boa constrictor. एक खास दृश्य जो हमेशा लोगों को बहुत उत्तेजित करता था, उसमें एक 35 फुट लंबा अजगर शामिल था। The trainer had raised this huge snake for 25 years. उस प्रशिक्षक ने इस विशाल सांप को 25 साल से पाला था। He got it when it was only a few days old. उसने इसे पकड़ा था जब ये बहुत ही छोटा था। He cared for it. उसने इसकी देखभाल की थी।
He fed it, उसने इसका पालन पोषण किया था and he worked with it daily. और वो रोज उसके साथ काम करता था। In this particular act, इस खास दृश्य में the trainer would lie down on the ground with his pet boa. वो प्रशिक्षक अपने इस पालतू अजगर के साथ लेट जाता। The snake then will begin to wrap its long, strong tail around his body. और फिर वो सांप अपनी लंबी शक्तिशाली पूंछ को प्रशिक्षक के शरीर पर लपेटना शुरू करता। The massive reptile was easily strong enough to crush the man into pieces. वो विशाल सांप आसानी से इतना शक्तिशाली था कि उस व्यक्ति को टुकड़ों में चूर चूर कर सकता था। But it would always release him just as he trained it. परंतु वो हमेशा उसे अपनी गिरफ्त से छोड़ देता जैसे कि उसे प्रशिक्षित किया गया था। But one day, things did not work out the way they were supposed to. परंतु एक दिन सब कुछ जैसा होना चाहिए था वैसा न हुआ। The boa wrapped around his master like he always did. अजगर ने अपने मालिक को हमेशा की तरह अपनी पूंछ में लपेटा। When suddenly the reptile true nature seemed to return. जब अचानक सांप का असली स्वभाव उसमें प्रकट होता हुआ लगा। In front of the watching eyes of hundreds upon hundreds startled people, भौचक के खड़े लोगों की सैकड़ों आंखों के सामने the boa kept squeezing and squeezing and squeezing. वो अजगर दबाता दबाता और दबाता चला गया। Only this time it did not uncoil and loose its grip. केवल इस बार उसने अपनी गिरफ्त को ढीला न किया। Before the horrified crowd, भयग्रस्त भीड़ के सामने ही the boa squeezed the life breath out of his trainer and crushed him to death. उस अजगर ने अपने प्रशिक्षक की आखिरी सांस तक निकाल ली और उसे कुचलकर मार डाला। The man's pet had become his cruel master. उस व्यक्ति का पालतू जीव उसका निर्दयी मालिक बन गया। My listening friend, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, What is gradually wrapping itself around you? वो क्या है जो धीरे धीरे आपके इर्द गिर्द लिपटता जा रहा है? What is slowly crushing the spiritual life out of you? वो क्या है जो धीरे धीरे आप में से आत्मिक जीवन को कुचलता जा रहा है? What temptations are you flirting with? आप कौन सी परीक्षाओं से खेल रहे हैं? What pets are you lying down with and cuddling? कौन से पालतुओं को आप गले लगाकर लेट रहे हैं? Could it be that your career slowly squeezing out of you the desire for God and His Word? क्या आपका व्यवसाय है जो धीरे धीरे आप में से परमेश्वर और उसके वचन के लिए आपकी इच्छा को निकालता जा रहा है? Is your work keeping you from spending time with Him and serving Him? क्या आपका काम आपको उसके साथ समय बिताने और उसकी सेवा करने से रोक रहा है? Could it be the lure of material things that is crushing your spiritual life? क्या ये भौतिक पदार्थों का मोह है जो आपके आत्मिक जीवन को कुचल रहा है? What is it for you? आपके लिए वो क्या है? Be sober, be vigilant because of your adversary the devil. अपने विरोधी शैतान की वजह से गंभीर रहिए, सतर्क रहिए। It is my prayer that you are sober and vigilant. ये मेरी प्रार्थना है कि आप गंभीर और सतर्क रहें। And until next time, I wish you God's richest blessing. और अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की कामना करता हूँ।